आसनसोल नगर निगम चुनाव के मद्देनजर आज शहर के अपकार गार्डन स्थित माकपा के जोनल कार्यालय में पार्टी की तरफ से आने वाले चुनाव के लिए मैनिफेस्टो जारी किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ माकपा नेता गौरंग चटर्जी ने मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि अगर आने वाले चुनाव में वामफ्रंट की बोर्ड का गठन होता है तो वो आसनसोल नगर निगम क्षेत्र की बेहतरी के लिए मैनिफेस्टो में लिखे हर एक शब्द को पूरा करने की कोशिश करेंगे। गौरंग चटर्जी ने कहा कि अगर आसनसोल नगर निगम में उनकी बोर्ड का गठन होता है तो सबसे पहले वो रानीगंज, जमुरिया और कुल्टी को अलग निकाय बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि रानीगंज और जमुरिया को मिलाकर एक अलग महकमा बनाने के लिए भी राज्य सरकार से अपील की जाएगी। वर्तमान नगर निगम के पदाधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए गौरंग चटर्जी ने कहा कि वामफ्रंट की तरफ से अगर बोर्ड का गठन किया जाता है तो वामफ्रंट एक भ्रष्टाचार मुक्त आसनसोल नगर निगम बोर्ड का गठन करके दिखाएगी। इसके साथ ही गौरंग चटर्जी ने कहा कि शिल्पांचल के बेरोजगार शिक्षित युवाओं के रोजगार की भी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए नौकरी के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही गौरंग चटर्जी ने कहा कि इस वक्त जो भी विकास हो रहा है वो चकाचौंध वाला दिखावटी विकास किया जा रहा है। अगर वो वामफ्रंट के बोर्ड का गठन किया जाता है तो वो लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सही मायनों में विकास का कार्य करेंगे। 70टी आसने कास्ते हाथुरी तारा चिन्हे, सीपीआई 12टी आसने कास्ते धानशीष चिन्हे, आरएसपी 6टी आसने कोदाल बेलचा चिन्हे, অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক 16টি আসনে তারা হচ্ছে সিংহছাপ চিহ্নে তারা হচ্ছে লড়ছেন এবং একটি নির্দল আছে, সেই নির্দলকে আমরা সমর্থন করছি। আর একটি মাত্র আসন, যে আসনে হচ্ছে আমরা কোনো প্রার্থী দিইনি, ওখানে যিনি দলবদলু হবেন না, যিনি গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে থাকবেন, যিনি মানুষের পক্ষে থাকবেন, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব, তাকে আমরা সেখানে হচ্ছে আলোচনা সাপেক্ষে সেখানে আমরা তাকে হচ্ছে আমরা সমর্থন দেব। এই হচ্ছে সামগ্রিক বিষয়। এবার বাকি যা আছে আপনারা এবার এখানে আছেন বামফ্রন্টের নেতৃত্ব, আপনারা তারা কাজ করতে পারবে। এরকম অসংখ্য বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করছি এই সমস্ত বেকার যুবকদের কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত করে পলিটিক্সে এবং ভোট পলিটিক্সে এদের ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এদের হাতে কোনো কাজ নেই এবং কোথাও কোথাও আমরা দেখছি যে তাদেরকে একটা বাহিনী হিসাবে তারা নির্বাচনটাকে পার করার জন্য বাহিনী হিসাবে এই বেকার যুবকদের ব্যবহার করছে। এটা অমর্যাদাকর, যুব সমাজের প্রতি একটা অমর্যাদা এবং যুব সমাজকে অন্য কাজে মানে অসামাজিক কাজে লিপ্ত করার ক্ষেত্রে একটা পরিকল্পনা আমরা এই অঞ্চলে, এই গোটা আসানসোল শিল্পাঞ্চলে আমরা কিন্তু করছি। জনঘনত্ব অনুযায়ী পরিকল্পিতভাবে কাজ যাতে হয়, আমরা যাতে মানুষের যে এক একটা এলাকার যে ঘনত্ব থাকে, জনঘনত্ব থাকে, সেই অনুযায়ী উন্নয়ন, তার জীবনমানের উন্নয়ন মানে শুধু কিন্তু ইলেকট্রিসিটি নয়, উন্নয়ন মানে শুধুমাত্র রাস্তাঘাট নয়, উন্নয়ন মানে হলো জীবন মানের যে উন্নয়ন, তার শিক্ষাটা সম্পূর্ণ করা, প্রাইমারি থেকে শুরু করে হায়ার সেকেন্ডারি থেকে শুরু করে কলেজ শিক্ষা থেকে শুরু করে তার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকে ঠিক করা, ঘরের কাছে যেন তার স্বাস্থ্য থাকে, ঘরের কাছে তার যেন শিক্ষা থাকে, এই ব্যবস্থাটাকে কিন্তু আমাদের করা দরকার বলে আমরা মনে করেছি। আপনারা আসানসোল রেলপাট যেটা দেখলেন, এইরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় গোটা আসানসোল, যেটা কখনো হয়নি, আসানসোল পুরনো জিটি রোডের উপরে জল উঠে গেছে, অথচ দীর্ঘদিন আমি নিজে বিরোধী দলনেতা হিসাবে আমি বলেছি এই গাড়ুই নদী কেন সংস্কার করা হবে না, কেন গাড়ুই নদীর উপরে এত ইললিগ্যাল কনস্ট্রাকশন হচ্ছে। কিন্তু আপনারা যদি খোঁজ নিয়ে দেখেন তাহলে যারাই এই গাড়ুই নদীর উপরে যারা ঘর করছে, ইললিগালি কোনো পারমিশন নেই ঘর হচ্ছে, তারা সবই কিন্তু শাসক দলের মদতপুষ্ট লোক এবং তাদের কোনো পারমিশন লাগে না, তাদের কোনো বিল্ডিং পাস করাতে হয় না, অথচ সেগুলোকে দখল হচ্ছে এবং গাড়ুই নদী আস্তে আস্তে একটা এমন জায়গায় পৌঁছাচ্ছে। আমরা সেটা দেখেছি, একটা আজকে গাড়ুই নদী বলে তার নামটা আছে,
কিন্তু সে একটা নালাতে পরিণত হয়েছে। এবং ভবিষ্যতে যদি এটা সংস্কার করা না হয় তাহলে গোটা আসানসোলের পক্ষে একটা বিপজ্জনক জায়গায় আমরা কিন্তু চলে যেতে পারি। আমাদের কাজ হবে, যদি আমরা পৌর বোর্ড আমরা গঠন করতে পারি, এই গাড়ুই নদীর সংস্কার আমাদের একটা বৃহত্তর কাজ হিসাবে আমরা কিন্তু করতে চাই। আমরা পৌর কর্মচারী যারা ছিল সেই সময়, সেই পৌর কর্মচারীরা আপনারা দেখবেন, আপনাদের খবরেও বেরিয়েছে যে মেয়র এত বেশি আপনার অমর্যাদাকর ব্যবহার তাদের সঙ্গে করতেন, একটা সামান্য সম্মানটুকু পর্যন্ত তাদের দিতেন না। প্রথমে যেটা বলে রাখি যে 2015 সালের 3রা জুন আসানসোল কর্পোরেশন মানে হচ্ছে যে বৃহত্তর আসানসোল কর্পোরেশন তৈরি হলো। এবং এই আসানসোল কর্পোরেশন যখন তৈরি হলো তখন আসানসোলের যে পুরনো যে আসানসোল কর্পোরেশন ছিল তার যে নাগরিক সংখ্যা, জনসংখ্যা, সেই সংখ্যা ছিল 5,63,917। কুলটির যে সংখ্যা ছিল তার সংখ্যা ছিল হচ্ছে 3,13,809। জামুরিয়ার যে সংখ্যা, যাকে যুক্ত করে দেওয়া হলো ওই 15 সালে জুন মাসে 3রা জুন, তার নাগরিক বা জনসংখ্যা ছিল 1,45,276। এবং রানীগঞ্জের যে যুক্ত করা হলো, এই রানীগঞ্জের সংখ্যা হচ্ছে 1,28,446। টোটাল 11,52,443 জন মানে জনসংখ্যা, যা হিসাব সরকারি, সেই সরকারি হিসাব অনুযায়ী এই সংখ্যাকে নিয়ে বৃহত্তর আসানসোল কর্পোরেশন তৈরি হলো। তার মধ্যে হচ্ছে পুরুষের সংখ্যা ছিল 52% এবং মহিলার সংখ্যা ছিল হচ্ছে যে 48%। টোটাল আসানসোল কর্পোরেশন 126 স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকা জুড়ে তৈরি হলো। এবং আমি এখানে একটু শুধু আপনাদের কাছে এটা আমরা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে এটা বলতে চাইছি যে কলকাতা কর্পোরেশন তার যে এখন ওয়ার্ড সংখ্যা সেটা হচ্ছে 144। কলকাতা কর্পোরেশন এলাকা হচ্ছে 206.8 বর্গ কিলোমিটার। আমি এই কথাটা আপনাদের সামনে আমরা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে এই কারণেই বলতে চাইছি যে কলকাতা কর্পোরেশন রাজধানীর কাছে এবং সেটা হচ্ছে রাজধানী এলাকার মধ্যে, তার যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা আছে। সেখানে যেটা সম্ভব সেটা কিন্তু হচ্ছে আসানসোলের মতন একদম বর্ধমানের একদম পশ্চিমবঙ্গের লাগোয়া সীমান্ত এলাকায় এই যে 106 স্কোয়ার কিলোমিটার যে এলাকা জুড়ে যে কর্পোরেশন তৈরি করা হলো, মানে এর ফলে কিন্তু হচ্ছে নাগরিক পরিষেবা সেইভাবে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। এবং মানে এই কলকাতা কর্পোরেশনের দেখুন যে কলকাতা কর্পোরেশনের যেটা হচ্ছে যে এইবার যে নির্বাচন হচ্ছে যে কর্পোরেশনগুলোর, তার মধ্যে আপনার থাকছে শিলিগুড়ি কর্পোরেশন, তার মধ্যে চন্দননগর কর্পোরেশন, তার মধ্যে হচ্ছে বিধাননগর কর্পোরেশন। লক্ষ্য করার বিষয় যে আপনার বিধাননগরে 41টা ওয়ার্ড, শিলিগুড়িতে 47টা ওয়ার্ড, চন্দননগরে হচ্ছে 33টা ওয়ার্ড। এই যে একটা জামুরিয়া রানীগঞ্জে প্রচুর উন্নতি করা হয়েছে, কেন হয়নি? জামুরিয়াতে নজরুল শতবার্ষিকী, জামুরিয়াতে জল, রানীগঞ্জে জল, রানীগঞ্জে রবিনসন স্টেডিয়াম, রানীগঞ্জে হচ্ছে কমনীয় দাশগুপ্ত কমিউনিটি হল, রানীগঞ্জে স্কুল, রানীগঞ্জে কলেজ, বিভিন্ন জায়গায় শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে ICDS সেন্টার। জামুরিয়া কেন, জামুরিয়া রানীগঞ্জ সব জায়গাতে হয়েছে। আমি যদি এইটা বলি, আমরা যে তৃণমূলের আমলে আপনারা একটা নতুন স্কুল, একটা নতুন শিশু শিক্ষা কেন্দ্র, একটা নতুন হাসপাতাল, গ্রামীণ হাসপাতাল, একটা নতুন করে কোনো পোস্ট অফিস বা একটা নতুন করে কোনো কিছু দেখাতে পারবেন? কেউ বলুন হয়েছে? গোটা আসানসোল, বৃহত্তর আসানসোল কর্পোরেশনে আমি বলি কোনো জায়গাতে হয়েছে? মানুষের স্বাস্থ্য, পানীয় জল, শিক্ষা, মাইন্স বোর্ড অফ হেলথ বন্ধ, কলকারখানা চালু, তাহলে একটা বলুন এখানে যারা আছেন, আমি বলছি কেউ যদি বলতে পারেন, তৃণমূলের কোনো নেতা যদি বলতে পারে যে নতুন করে একটা স্কুল তৈরি করেছি, নতুন করে ICDS সেন্টার তৈরি করতে পেরেছি, নতুন করে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র তৈরি করতে পেরেছি, নতুন করে রাস্তা তৈরি করতে পেরেছি, নতুন করে জলের ব্যবস্থা করতে পেরেছি, নতুন করে হচ্ছে যে কোনো চওড়া রাস্তা তৈরি করতে পেরেছি, কোনো কিছু করতে পেরেছে?
কি বলছেন আমি বলতে পারছি না। একটা কথা হচ্ছে যে 106 স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকাতে 9টা আরবান ইউনিট, সেটা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের কি দশা সেটা আমরা জানি। এবার বাকি আপনারা বলুন এবার। आसनसोल नगर निगम के रानी तालाब स्थित वार्ड 71 में निर्दल प्रत्याशी नाज़नीन बेगम ने चलाया जनसंपर्क अभियान। इस दौरान वार्ड 71 के रानी तालाब सिमुलग्राम सहित आसपास के कई मोहल्लों में कोरोना के महामारी को देखते हुए मास्क वितरण कर कोरोना नियम का पालन करते हुए अपने पक्ष में सूरज चिन्ह में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने बताया कि वार्ड में जिस प्रकार से 5 वर्षों से लोगों को जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए थी उससे जनता दूर रही है। वहीं आम गरीब जनता में आक्रोश भी देखा जा रहा है, कहीं पानी नहीं तो कहीं नाली नहीं। इस दौरान निर्दल उम्मीदवार नाज़नीन बेगम तथा उनके 4 सहयोगी प्रचार में जुटे रहे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पब्लिक के डिमांड पर आई हुई हूँ और इंशाल्लाह जीत के जाऊंगी। पब्लिक चाहा तो नेता बन गया, नहीं चाहा तो नहीं बन सके। आपका नाम? नाज़नीन बेगम, 71 नंबर वार्ड। आसनसोल नगर निगम के 31 नंबर वार्ड से टीएमसी ने इस बार एक शिक्षिका आशा प्रसाद को टिकट दिया है। आसनसोल टाइम्स ने आशा प्रसाद के साथ खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि वो इन चुनाव को लेकर क्या सोच रही है और उनकी क्या रणनीति है। 31 नंबर वार्ड से टीएमसी की तरफ से इस बार आपको प्रत्याशी बनाया गया है, तो इस वार्ड की जनता से क्या उम्मीद है आपको? बहुत खुशी मिल रही है। जब मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग करने जा रही हूँ तो वहाँ पर जो है सभी लोग हमको देखकर बहुत मैंने खुशी हो जाते हैं। ऐसे समझते हैं जैसे कि हमारी घर की लड़की है जो आज इस चुनाव में पहला बार जो है हम लोग के मन के हिसाब से अच्छा एक काउंसिलर का दायित्व दिया जा रहा है, जिसके वजह से लोग बहुत खुश हमको उल्लासित दिखाई पड़ रहे हैं और सभी कह रहे हैं कि आप चिंता मत करिए, आप आगे बढ़िए, आपके साथ हम हैं। इस वार्ड में जब आप प्रचार कर रही हैं तो इस वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या हैं जो आपको नज़र आ रही हैं? छोटे मोटे कुछ ऐसे काम हैं जो दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे काउंसिलर तो नहीं थे। पहले तो यहाँ बहुत दिन से सीपीएम का राज था, सीपीएम का गुंडागर्दी चलता था, जिसके वजह से बहुत कुछ काम हम लोग का अधूरा रह गया। लेकिन 2 साल में जब हमारे काउंसिलर सीपीएम से टीएमसी में आए तो कुछ काम हुआ है और कुछ अधूरे काम है जो मैं देख कर आई हूँ और उसे सोचती हूँ कि मैं जल्द से जल्द उसको पूरा कर दूँगी। और लोगों आपने कहा कि लोग आपको सराफों ले रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि आप उनके घर की बेटी हैं, तो क्या आपको लगा कि आपने चुनावी राजनीति में उतरने की सोची, क्योंकि आप पेशे से शिक्षक हैं, तो ऐसे में आपने चुनाव लड़ने की क्यों सोची? ये चुनाव लड़ने के लिए नहीं, मैं बहुत दिन से ये काम कर रही हूँ, समाज सेवा का काम कर रही हूँ, जिससे लोगों ने बहुत ही सोचा था, पहले से ही हो सकता है उन लोग को मन में ये होगा, मेरे बारे में प्रति प्यार जगा होगा कि नहीं इन्हीं को ही बनाया जाए। जब लेडीज़ वार्ड बनाया तो प्रत्येक आदमी के जब भी हम डोर टू डोर कैंपेनिंग करने जा रहे हैं तो यही बात हो रहा है कि हम लोग सभी चाहते थे कि आप ही बन जाइए। अभी जो कि हम लोग आपके घर में आपसे बात कर रहे हैं तो कोरोना को लेकर या मास्क को लेकर उतनी एहतियात शायद नहीं बरती जा रही है, लेकिन फिर भी जो कोरोना का भी समय चल रहा है इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, हम लोग अभी कोरोना का टाइम है, दीदी का आदेश है कि कोरोना आतंक तो है ही, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस बनाकर आप लोग काम करिए। अभी कॉरपोरेशन का जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में तो हम लोग को लड़ाई लेना ही है, तो थोड़ा डिस्टेंस बना के हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं और लोगों से बातें कर रहे हैं। और इस वार्ड से आपको क्या उम्मीद है? मतलब आप तो इस वार्ड से मुझे पूरा उम्मीद है कि लोग हमें ही चाह रहे हैं और चाहने के बाद भी हमको हो सकता है क्या, पूरा एकदम विश्वास के साथ मुझे उम्मीद है कि मैं ज़रूर ये लड़ाई जीतूंगी। रानीगंज के 92 नंबर वार्ड में भाजपा प्रत्याशी सुनीता कयाल के समर्थन में लगाए गए पोस्टरों को फाड़ दिया गया। भाजपा प्रत्याशी सुनीता कयाल ने इसके लिए
सत्तारूढ़ दल टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। सुनीता का कहना है कि भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर टीएमसी समर्थकों ने इस काम को अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में रानीगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि कश्मीरी गली, विष्णोया गली, बड़ा बाजार आदि क्षेत्रों में पोस्टर फाड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि किसी ने पोस्टर फाड़ते हुए किसी को तो देखा नहीं है, लेकिन उनका अनुमान है कि ये विरोधी दल का ही काम है। हालांकि जब हमने संदर्भ में इस वार्ड से टीएमसी प्रत्याशी श्यामा उपाध्याय से बात की तो उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है। टीएमसी के किसी भी कार्यकर्ता का इसमें कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ से तो माकपा के भी प्रत्याशी है, ये उनका भी कार्य हो सकता है, या फिर सुनीता कयाल के टिकट दिए जाने से नाराज भाजपा के ही कुछ समर्थकों ने इस काम को अंजाम दिया होगा। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। हमारे कार्यकर्ताओं ने कल रात को बैनर और पोस्टर लगाया, जिसे स्थानीय लोगों ने हमें इन्फॉर्म किया कि रात को फाड़ दिया गया है। हमने देखा कि कुछ लोग आए और वो पोस्टर फाड़ दिए गए। वो लोग विरोधी दल के ही होंगे, ये हमारा अनुमान है, क्योंकि इसके अलावा किसी को फ़ायदा नहीं है कि वो क्यों फाड़ेंगे हमारा पोस्टर। 92 नंबर वार्ड में कश्मीरी गली, बिस्निया गली, बड़ा बाजार, इस एरिया में हम लोगों ने लगाया था। किस क्षेत्र का पोस्टर, मतलब इन सारे एरिया के पोस्टर फाड़ दिए गए। आपने स्थानीय थाना में जनाई है? हाँ, हमने स्थानीय थाना में कंप्लेन किया है और हमें ये कंप्लेन लेटर है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। क्या वजह रही बैनर फाड़ने की? हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से वो लोगों के दिल में जगह नहीं बना पाएंगे। क्या लगता है कि कौन आपका बैनर को फाड़ेंगे? विरोधी दल में एक तरफ सीपीएम, दूसरी तरफ टीएमसी। जो शासक दल है वही ये कोशिश करेगा, ऑब्वियस है ये तो। क्या दावी रखते हैं? मैं आगे ऐसा ना करें और इस तरह से वो लोगों को काम करके लोगों के दिल में जगह बना सके। सब तो प्रचार में लगे हुए हैं, सबको 22 तारीख का इंतजार है। ऐसा हरकत कोई कर ही नहीं सकता। फिर भी आप लोग के पास कोई प्रूफ है तो आप दे सकते हैं। ऐसा हमारे नॉलेज में नहीं है कि कोई ऐसा काम किया होगा। उनके पास कोई प्रूफ हो तो वो दें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे पास इन सब काम करने के लिए समय ही नहीं है। से ये सब कर रहा है, ये कुछ बोला नहीं जा सकता है कि कौन कर रहा है। वो उनका, ये हमारे कार्यकर्ता का ये काम नहीं है कि वो सबका पोस्टर का निगरानी करते रहे। ये तो और भी एक पार्टी है, सीपीएम है, वो भी तो कर सकते हैं। ये हम नहीं बोल सकते कौन किया है, ये हमारे नॉलेज में नहीं है। तो ये हो सकता है सिंपैथी पाने के लिए, या फिर उनके ही पार्टी के लोग होंगे जो नहीं चाहते हैं, वही लोग किए होंगे। हम ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं कि ऐसा होगा या हुआ है। मेरा नाम श्यामा उपाध्याय, वार्ड नंबर 92 की प्रत्याशी। आसनसोल नगर निगम के 93 नंबर वार्ड के भाजपा प्रत्याशी दिनेश सोनी ने आज अपने समर्थकों के साथ वार्ड में डोर टू डोर प्रचार किया। कोरोना के नियमों को देखते हुए उनके साथ चंद समर्थक मौजूद थे। दिनेश सोनी ने अपने प्रचार अभियान के दौरान लोगों से मिले और उनको भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना के मद्देनजर जागरूक रहने, मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक आसनसोल नगर निगम टीएमसी के हाथों में रहा, लेकिन रानीगंज विकास से महरूम रहा। उन्होंने रानीगंज सहित पूरे आसनसोल क्षेत्र के विकास के लिए एक बार भाजपा को मौका देने की अपील की। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। आज वार्ड नंबर 93 में हलदार बांध में हम लोग डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से आज हमारे उपस्थित हुए रानीगंज विधानसभा के प्रत्याशी डॉक्टर बिजन मुखर्जी दा हम लोगों के साथ थे। और जिस तरह से विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ यहाँ से हम लोगों को वोट मिला है, तो निश्चित रूप से वही रिस्पांस एक बार फिर हम लोगों को देखने मिल रहा है और हम लोग यहाँ से फिर से जीतेंगे। और यहाँ की जो परिस्थिति है, अगर जीतते हैं तो यहाँ की परिस्थिति का हम लोगों का सबसे पहला काम होगा कि यहाँ की हम लोग परिस्थिति जो है समाधान करें, किस रूप से यहाँ पे जो समस्याएं हैं उस समस्याओं का समाधान। कोरोना प्रोटोकॉल आप देख सकते हैं कि जो नियम है उस नियम के तहत ही हम लोग जो है 5-6 लोगों को लेकर के घूम रहे हैं। विरोधी दल के जैसे ऐसा नहीं कि अगर वो सत्ता में है तो 20-25 लोगों को लेकर के घूम रहे हैं, वो हमारा नहीं है। पहले दिनों से हम लोगों ने जो निर्देश मिला है उसी निर्देश को पालन करते हुए हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। दिनेश सोनी, वार्ड नंबर 93, बीजेपी प्रत्याशी।
इस बार आसनसोल नगर निगम चुनाव में टीएमसी, भाजपा, माकपा और कांग्रेस के अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। उन्हीं में से एक है 91 नंबर वार्ड के निर्दलीय प्रत्याशी नीरज रजक। नीरज रजक ने आज अपने वार्ड में कोरोना के सभी नियमों का पालन करते हुए डोर टू डोर प्रचार किया और लोगों से उनके निशान साइकिल पर मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक इस अंचल के लोगों ने सभी सियासी दलों को देख लिया है, अब वक्त है 91 नंबर वार्ड के लोग एक निर्दलीय प्रत्याशी पर भरोसा करें जो कि बिना किसी दबाव के सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए काम करे। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। मैं नीरज रजक निर्दलीय प्रार्थी 91 नंबर वार्ड से इस बार की म्यूनसिपालिटी आसनसोल नगर निगम इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ। मेरा इस बार के इलेक्शन में खड़ा होने के एकमात्र ये है कि गरीब जनता का उसके साथ में खड़ा रहना। उनका बहुत सारी समस्या होती है जो काउंसिलर लेवल में होनी चाहिए, लेकिन वो सब हो नहीं पाती। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल को क्या फॉलो कर रहे हैं? कोरोना का समय इसलिए हम लोग को इंस्ट्रक्शन मिले हुए कि 2-4 आदमी से बेसी में नहीं आना है। मैं और मेरे एक सहयोगी है, जिसे आप देख सकते हैं, सैनिटाइजर का सबको वितरण करते हुए चल रहे हैं। आपका नाम परिचय? मेरा नाम नीरज रजक है। उम्मीदवार कौन वार्ड का? कौन सा वार्ड? 91 नंबर वार्ड के उम्मीदवार निर्दल प्रार्थी। जैसे जैसे आसनसोल नगर निगम चुनाव की तारीख यानी 22 जनवरी नज़दीक आ रही है, सियासी दलों के साथ साथ लोगों के बीच में कौतूहल बढ़ता जा रहा है। लोगों की इसी कौतूहल को समझने जानने आज आसनसोल टाइम्स के हमारे प्रतिनिधि जाहिद अनवर ने रानीगंज के 91 नंबर वार्ड के गिरजापाड़ा, चांद मोहल्ला, चरबी मोहल्ला, डोढ़ापाड़ा, रहमत नगर इलाके के लोगों से बात की और यहाँ की ज़मीनी हकीकत को समझने की कोशिश की है। आइए जानते हैं 91 नंबर वार्ड के लोगों ने आने वाले चुनाव को लेकर हमारे प्रतिनिधि को क्या बताया। क्या रहा इसमें? समस्या थोड़ा रोड रास्ता हुआ है, उसी के लिए थोड़ा दिक्कत है, नहीं तो बहुत ठीक ठाक। आपके वार्ड में 3 कैंडिडेट हैं। हाँ, सीपीएम, टीएमसी, बीजेपी। कौन जीतने से आपका काम करेगा? ये टीएमसी राजू सिंह मैंने श्योर है कि वो एकदम श्योर है, वो जीतेगा भी। भरोसा, अच्छा आदमी है। कौन? राजू सिंह अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, जानते हैं उसको। क्या नाम हुआ? मेरा नाम है सूरज साहब, गिरजापाड़ा, चांद मोहल्ला। प्रॉब्लम है आप लोग? यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम है, लल्ली नहीं है, पानी का दिक्कत है और बहुत कुछ ऐसा है कि बहुत दिक्कत चल रहा था। राजू सिंह तो कल आए रहे, बोले हम लोग सब कुछ कर देंगे, हम ही लोग को वोट दीजिएगा। क्या लगता है कि कौन पार्टी जीतने से आपका ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा? क्या लगता है? हाँ, राजू सिंह का ठीक है, अभी देंगे वोट हम लोग सब। देखिए आ रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं। क्या नाम हुआ? आपका नाम क्या हुआ? पुनी देवी मंडल। जगह का नाम? लाइक वन। हम लोग के लली उली वाला पानी उनी सब दुआरी में एकदम पूरा लगा रहता है। हम लोग के निकले के अथी जगह नहीं है, हम लोग का लली बढ़िया से बनवा दीजिए। हाँ, नल में हम लोग को पानी उनी नहीं मिलता है, झूल झमेला होता है पानी के चक्कर में। 91 नंबर वार्ड में बीजेपी, टीएमसी, सीपीएम, कौन पार्टी आने से आपका काम करेगा? और हम कौन पार्टी बोले? टीएमसी पार्टी परफेक्ट काम करेगा। हाँ, वही काम करता है। क्या नाम हुआ? सुनीता। जगह का नाम? लाइक वन। अभी कल नहीं ठीक से देखिए हम लोग भर रहे कल पर। क्या प्रॉब्लम है? नल का नल और ये से थी सब नली उली सब है, पूरा भर जाता है पानी। क्या लगता है कौन पार्टी आने से आपका काम करेगा? क्या लगता है कौन पार्टी आने से काम करेगा? देखिए टीएमसी। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? मेरा माना देवी। चल रहे हैं और नली भी साफ नहीं हो रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम है? हाँ, ये सब प्रॉब्लम है। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? कल में पानी नहीं आ रहा है, नली में भी पानी आती, नली साफ नहीं हो रहा है। तो क्या लगता है आपको कौन पार्टी आने से आपका काम करेगा ये वार्ड में? राजू से। क्या नाम हुआ? हमको राजमती नाम है। ऐसा क्यों? राजू सिंह उस बोल रहे हैं कि हम साफ करवा देंगे, हम कल नल लगवा देंगे।
जय हिंद दोस्तों, क्या है सच, क्या है कहानी, हम सुनाएंगे जनता की जुबानी। इस वक्त मैं आ पहुंचा हूं रानीगंज के 91 नंबर वार्ड पे, और यहाँ पे मैं एक सर्वे करूंगा कि लोग किसको चाहते हैं। एक तरफ तो बीजेपी, दूसरी तरफ टीएमसी, तीसरी तरफ सीपीएम। अब देखना यह है कि जनता किसको पसंद कर रही है। हम यहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इन लोगों का प्रभाव कहाँ है, किस तरफ है, किस पार्टी को इन लोग चाह रहे हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। आसासुल टाइम्स न्यूज़, मैं जाहिद अनवर। समस्या तो पूरा है, यहाँ का रास्ता का समस्या है, लाइन का समस्या, उधर नया नया प्लॉटिंग हुआ है, वो प्लॉटिंग में लल्ली का समस्या, जिसका तिसका घर में ड्रेन नहीं है, पानी का समस्या है। 91 नंबर वार्ड में 3 कैंडिडेट आपका काम करेगा। जीतने से काम कोई यहाँ पर ही बोल नहीं सकते कौन काम करेगा, लेकिन पसंद कर रहे हैं आप लोग के जीतने से हम लोग का काम होगा। हम लोग का काम करने वाला जो इंसान था वो तो अभी है ही नहीं है, लेकिन अभी एक तो नया कैंडिडेट खड़ा हुआ है, क्या नाम है उसका, कौन सिंह है, राजू सिंह। हाँ, थोड़ा वो नया लड़का उभर के आया है, हो सकता है वो काम कर सकता है। और उसका अगेंस्ट में कल्लोल घोष जो है वो भी बहुत अच्छा आदमी है, यहाँ का समस्या थोड़ा वो देखभाल करता है। अब देखते हैं, हार जीत तो कैंडिडेट जो खड़ा है, राजू सिंह अगर जीते तो आप काम हो सकता है। काम हो सकता है। हाँ, ये मेरा नाम सादिक हुसैन है, यहीं रहते हैं हम।